Good morning, student. Today we are going to study the first chapter of class 6 geography, the earth in the solar system. The Big Bang theory. The Big Bang theory is currently the most accepted theory to explain the origin of universe. According to this theory, around 40 billion years ago, everything that makes up the universe today was contained in a tiny point. Suddenly, this extremely dense point exploded, and all the matter it contained was thrown out into space. This explanation, this expansion is known as the Big Bang. The universe was born at this point. All natural bodies that exist in the universe are known as celestial body or heavenly body. First, star. Stars are huge body made up of burning gases. They give out light and heat. The sun is the star that lies closest to the earth. Galaxy. Most stars exist in cluster of millions or billions called galaxy. There are many billions of galaxies in the universe of different shape and size. The Earth is a part of the Milky Way galaxy. Constellation. Sometimes vain. Viewed from the Earth, group of stars in the sky appear to form certain certain fixed patterns such as group of stars is called constellation. The solar system. The solar system is made up of the sun, the eight planets that revolve around it, and other smaller celestial body. The sun. The sun is the star that lies at the center of the solar system. The gravitational force of the sun holds the solar system together. The sun is made up of burning gases, mainly helium and hydrogen. Within the sun, a type of chemical reaction called nuclear fusion takes place, which produces an enormous amount of energy in the form of light and heat. Planets are large, round heavenly bodies that moves in fixed path around the sun. These paths are known as orbit. These paths are usually elliptical in shape. One complete orbit around the sun is called a revolution. The time taken by a planet to make a full revolution around the sun is called year. Planets also rotate or spin around their axis as they travel around the sun. This is known as rotation. The time taken by a planet to complete a rotation is called a day. Dwarf planet. The solar system also includes dwarf planet-like bodies that are too small to be considered planet-like Pluto, Ceres, Eris, Sedna. The Earth. The Earth is the fifth largest planet in the solar system. When viewed from space, the Earth glows like a blue ball, looks like a blue ball. This is because about two-thirds of Earth is covered with the water of ocean and seas. The Earth is also called the blue planet. The actual shape of the Earth is similar to that of an orange, round and slightly flattened at the poles. This shape is called a geoid, means Earth-shaped. Satellite. Just as planet, there are heavenly bodies that revolve around some planet. These were known as satellites. Satellite-like planets do not have light of their own and reflect the light of the sun. The moon. Moon is the Earth's only satellite and it lies around 3,84,400 km away from it. It takes about
28 days to spin around its own axis, and it takes the some amount of time to complete its rotation around the Earth. As a result of the same side of the moon faces the Earth at all time, other heavenly body. Other heavenly body, apart from the star, planet, satellite, there are numerous smaller bodies which also move around the sun. Asteroid. Asteroids are rocky bodies believed to be part of the planet which exploded millions of years ago. They are usually found in a belt between the orbit of Mars and Jupiter. Meteoroid. Meteoroids are small pieces of comet or asteroid moving around the sun. Sometimes when they get too close to the earth, friction with the air causes them burn. They also known as the shooting star. Sometimes a meteor falls on the earth without being completely burned and create huge dents on or crater. Comet. Comet. Comets are frozen balls of dust, water, and rock. They have tails made of gas and dust particles. Their orbit around the sun are very long. This is why get to see them rarely. क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए लाया गया था। इस थ्योरी के अनुसार सबसे ज़्यादा सर्वमान्य भी है ये थ्योरी, और शायद इसके द्वारा ये बताया गया कि 14 बिलियन ईयर्स एगो सब कुछ जो है एक पॉइंट में समाहित था। अचानक से उसमें विस्फोट होता है और ये मैटर फैल जाता है पूरे यूनिवर्स में। इसी को ही जो है वहीं से यूनिवर्स का उत्पत्ति माना जाता है। सभी जो प्राकृतिक बॉडीज जो वहाँ पे यूनिवर्स में पाई जाती हैं उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडी के नाम से जानते हैं। स्टार ये एक बड़े शरीर या पत्थर के बने हुए एक हिस्से होते हैं जिनमें गैस भी शामिल होती है, और ये इनका अपना खुद का लाइट होता है और खुद का हीट होता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही चमकते भी हैं। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारे का नाम सूर्य या सन है। गैलेक्सी अधिकांश तारे जहाँ पे एक झुंड में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों तारे मिलेंगे, उसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। यहाँ पे कई बिलियन जो हैं गैलेक्सी मौजूद हैं हमारे यूनिवर्स में, और इनका अलग अलग शेप भी होता है, अलग अलग साइज भी होता है। अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टिलेशन कुछ तारे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अर्थ से स्काई के तरफ में देखते हैं तो कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो झुंड में होते हैं और कुछ पैटर्न बना के हुए रहते हैं, और जो वो पैटर्न जो बनाते हैं उससे कोई शेप और कुछ अलग तरीके के दिखाई पड़ते हैं आकृतियाँ, उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। द सोलर सिस्टम द सोलर सिस्टम इज जो सोलर सिस्टम है वो बना हुआ है सूर्य और उसके 8 ग्रहों के द्वारा, जो कि वो ग्रह जो है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। पहला है सूर्य। सूर्य सन जो है एक तारा है जो कि ठीक बीच में है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो है सारे 8 प्लैनेट जो है इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। सूर्य जो है मुख्य रूप से वो जलने वाले गैसों की तरफ से बना है, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसके चलते जो है बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है क्या होता है प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। प्लैनेट ये एक बड़े गोलाकार आकृति के शेप के एक हेवनली बॉडी होते हैं जो कि अपने एक निश्चित मार्ग पर सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनके जो मार्ग होते हैं उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, जिस पे घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, और साथ ही साथ ये
इक्लिप्टिकल शेप में होते हैं, मतलब अंडाकार शेप का इनका ये घूमने का रास्ता होता है। ये चारों तरफ सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, और जो भी प्लानिट पूरा चक्कर अगर सूर्य के लगा लेती है उसको हम लोग ईयर कहते हैं, एक साल कहते हैं। और वहीं पे प्लानिट जो है अपने खुद के धुरी के ऊपर में भी वो घूमते हैं, और जब ये एक धुरी कंप्लीट कर लेते हैं पूरा घूम के अपने स्थान पे ही, उसको एक दिन कहते हैं। ड्वार्फ प्लानेट वैसे प्लानेट होते हैं सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और उनको माना गया है कि वो प्लानेट जैसे हैं, जैसे कि प्लूटो, सेरेस, एरिस और सेरेनाथी। पृथ्वी, अर्थ। अर्थ जो है पांचवा सबसे बड़ा प्लानेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और अगर इसको हम अंतरिक्ष से देखें तो ये नीला बॉल के जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एक तिहाई हिस्सा, तीन चौथाई हिस्सा जो है इसका पूरा का पूरा पानी से, यानी ओशन के वाटर से भरा पड़ा है। इसलिए इसको जो है हम लोग कभी कभी नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका वास्तविक जो स्वरूप है पृथ्वी का, वो एक संतरे के समान है, जो कि पूरा गोल और ऊपर से पोल की तरफ में दबा हुआ। इस शेप को हम लोग जो है जियोइड कहते हैं, मतलब कि अर्थ अपने शेप में है। सैटेलाइट ये उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। हर एक ग्रह का कुछ 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 ग्रहों का अपने उपग्रह भी होते हैं, उनको जो कि ग्रहों के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं, इसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम चंद्रमा है, जिसको हम लोग मून भी कहते हैं। मून जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला एकमात्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये 28 दिनों में अपना जो पृथ्वी के चारों तरफ ये घूम जाता है, और ये अपने एक्सिस पर ही ये घूमता हुआ जाता है। इसी के चलते क्या हो जाता है कि इसका रोटेशन में कभी भी हमको दूसरा पक्ष जो है पृथ्वी चंद्रमा का दूसरा हिस्सा या दूसरा चेहरा जो नहीं दिख पाते हैं, हमेशा हमें एक ही चेहरा इसको दिखाई पड़ता है। इसलिए ये जो है हमें एक ही हिस्सा इसका दिखाई पड़ता है, और ये 28 दिनों में अपना चक्कर को पूरा कर लेती है। दूसरे अन्य प्राकृतिक बॉडियाँ जो कि यूनिवर्स में पाई जाती हैं, ग्रहों, तारों और उपग्रहों के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं अंतरिक्ष में जो कि हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे एस्टेरॉयड। ये एक पत्थर से बने हुए कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सालों पहले सालों पहले विस्फोट जो हुआ था अंतरिक्ष में, उसके कारण ये घूमते रहते हैं, और ये एक बेल्ट के सहारे खास करके मार्स और जुपिटर के बीच में सबसे ज़्यादा घूमते हैं। मेटेरॉइड, ये सबसे छोटे पीसेस हैं कॉमेट या एस्टेरॉयड, जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और ये जब कभी भी उनसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर आते हैं, तो ये क्या होता है, वातावरण में घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, और ये हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है कि वो टूटता हुआ तारा है। पुच्छल तारा भी इसको कहते हैं। ठीक है। कॉमेट्स, कॉमेट्स आर फ्रोजन, ये जमे हुए डस्ट पार्टिकल्स के या फिर जल के या पत्थरों के पार्टिकल्स के बॉल होते हैं, और ये जो गैसों से बने होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से घूमते रहते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं।